Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Professor Vijay Kumar Agrawal with us. He is the Vice Chancellor of RKDF University, Gandhinagar, Bhopal. A hearty welcome to you, sir, on behalf of College Dunia, and thank you for giving your precious time to us, sir. Shall we start the interview? Yes, thank you very much for inviting me and giving me this opportunity to express myself. Thank you, sir. So my first question to you is, you have held key positions at education institutes throughout your professional career. What are the key factors that keep you connected with the education sector? In fact, sometimes it is very fascinating to be a teacher. And I have been working in the university and in Technical Teachers Training Institute. And I found that the intervention of the leadership is very much important. You have to develop the institution so that the students should get the best out of the scenario which is available in our country. Right, sir. Being the Vice Chancellor of RKDF University, what is your philosophy of leadership? How would you describe your leadership style, sir? Basically, one has to work for the development of the society, and the students are the focus of our society. Our students they are our stakeholders, and they should be trained in such a way that they should become job givers, not the job takers. So our focus is that the students should have all the qualities of a better human being with the human values, and ultimately they should be given best teaching and learning atmosphere in the campus. Right, sir. The education system in India and other foreign countries are structured very differently. Yes. In your experience, what can an inbound student gain from studying here in your university? We are focusing on hands-on training. Our students are given value-added courses, and we have given this option to our students that they can opt some of the value-added programs which we are offering. One of the value-added program is spirituality oriented, which is being run by the Brahma Kumaris, and all the undergraduate students will have to complete the program. So our motive is that our student should be graduate with value addition, and they should understand the social responsibilities also. Okay, sir. My next question is, sir, any insights into how your university could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? एक्चुअली जब हम किसी यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करते हैं तो हमें होता है कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जो सांस्कृतिक गतिविधियों के विद्यार्थी हमारे बीच में आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनके बीच में आपसी सामंजस्य होना चाहिए। तो हमारा जो पूरा की पूरा प्रयास होता है कि हमारे बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं उनके बीच में हार्मनी पैदा हो, तो हम उस तरह के प्रोग्राम करते हैं। हम शुरुआत में बच्चों का वेलकम करते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं जहां उनके कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, उनके बीच में जो उनके वैल्यूज़ का आदान प्रदान होता है वो अच्छी तरीके से हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम पेडागॉगी के क्षेत्र में अपने बच्चों की क्लासरूम टीचिंग से ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्ट करके उनकी नॉलेज को बढ़ाने का काम करते हैं। हम इस बात को प्रमोट करते हैं कि हमारे बच्चे सीरीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो। हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत ट्रेंड फैकल्टी है। हम उनका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लगातार करते रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे कैंपस में बच्चे को बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट नॉलेज और उनके जीवन से संबंधित जो मूल्य हैं उनका भी हम अध्ययन कराएं। Okay, sir. What do you think your roles and responsibilities to the university and the students are? किसी भी वाइस चांसलर की जिम्मेदारी होती है कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उससे सेटिस्फाइड हैं। तो हमारा पहला कंसर्न तो हमारे विद्यार्थी हैं। हमारे विद्यार्थी कैंपस में आए, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको वो तमाम सारी सुविधाएं मिलें जो इंटरनेशनल लेवल पे मिलती हैं। तो हमने अपनी लेबोरेटरीज़ को बहुत अच्छा किया है, हमारी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, हमारे जो क्लासरूम हैं वो ICT इनेबल्ड क्लासरूम्स हैं।
हमारे जो टीचर्स हैं उनके हम फैकल्टी डेवलपमेंट के प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हम अपने टीचर्स को रिसर्च के लिए मोटिवेट करते हैं, बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करते हैं। और एक ग्रीन कैंपस, आपने देखा होगा कि हमारा कैंपस बहुत खूबसूरत है, जिसके लिए हमें कई बार अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनको CSIR और देश की दूसरी एजेंसीज ने भी रिकॉग्नाइज किया है। हम CSIR के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। हम इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे बच्चों को पढ़ते हुए उनकी आमदनी भी बढ़े, जिसे हम कह रहे हैं कि अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर हमारा वो एक सेक्टर है जहां हम इस तरह के प्रोग्राम को इस साल से लॉन्च करने जा रहे हैं। So many things at one place, and that will definitely help all the students also. जी। And my next question is, what do you think should be the university's top priority over the next 10 years? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इस बात की बहुत चर्चा होती है कि हमारे बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो कोर्स हो वो ऐसा हो जिससे कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिले। ये ठीक है कि बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, अपना उद्योग लगाएं, अपना काम करें, लोगों को नौकरी दें, लेकिन बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सोशियो इकोनॉमिकली बहुत वीकर हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि बच्चों का जो एजुकेशन की कॉस्ट है वो रिड्यूस होनी चाहिए, कम पैसे में बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा होना चाहिए। हमने इस सिलसिले में अपने पास जो रिसर्च का मटेरियल है, जो हमारा एजुकेशनल मटेरियल है, वो हमने इंटरनेशनल लेवल का इकट्ठा किया है। हमारे टीचर्स के पास सारे ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि विदेशों के बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी मेंबर्स के हैं। तो उन सारे लोगों को का एक्सपोजर हम अपने बच्चों के साथ कराना चाहते हैं। ICT इनेबल्ड हमारे क्लासरूम है। 10 साल में हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े पदों पर बैठे हों। हमारे ऐसे जो पूरा छात्र तैयार हों जो अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बने। हमारे बच्चों का इस यूनिवर्सिटी के साथ लगाव हो, आत्मीयता हो और वो लगातार इस यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करें। कुलपति संस्थान में आते हैं कुछ वर्षों के लिए, लेकिन संस्थाएं वर्षों तक चलती हैं। तो मैं चाहता हूं कि 10 वर्षों में यह संस्था इतनी ज़्यादा उन्नत हो ताकि हमारे बच्चों को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले इस यूनिवर्सिटी में, जो भोपाल में गांधीनगर में है। और यहाँ पर जो हमारे रिसर्च और इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनसे उनके भविष्य का निर्माण हो। Right, sir. What do you see as RKTF University greatest strengths, sir? देखिए, नीति आयोग ने लगातार 2 सालों में हमारे विश्वविद्यालय की जो कार्बन कैप्चर प्लांट का जो प्रोजेक्ट है, जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसको अपनी रिपोर्ट में स्थान दिया है। अभी CSIR के साथ हम MOU हमने साइन किया है और 4 तारीख को मुंबई में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। हम यहाँ पर CSIR की लेबोरेटरी हमारे यहाँ रिसर्च करने जा रही हैं, हमारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करके। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये जो बच्चे हमारे यहाँ, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों, ह्यूमन वैल्यूज़ के हों, मैनेजमेंट के हों और या टेक्नोलॉजी के बच्चे हों, इन तमाम सारे लोगों को जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलने वाला है आने वाले दिनों में। और हम चाहते हैं कि जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं वो इतनी अच्छी इक्विप्ड रहें ताकि बच्चों को कहीं और जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सारी इंडस्ट्री का एक्सपोजर यहाँ उनको मिल जाए। Okay, sir. Sir, any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जो है वो कुछ सीरीज से पढ़ के शॉर्टकट्स अपना के पास होना चाहते हैं, 5 क्वेश्चन सीरीज, 20 क्वेश्चन सीरीज, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है वो इंडस्ट्री का, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जो क्लासरूम टीचिंग है आपकी, जो आपने बंद कर दिया है लाइब्रेरीज में जाना, वो सारी की सारी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। आपको अपनी इंटीग्रिटी बढ़ानी चाहिए, आपको एक टाइम फ्रेम में काम करने की आदत होनी चाहिए, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप टीम में काम कर सकें, आप ईमानदारी से काम कर सकें, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, क्योंकि समाज में अच्छे मनुष्यों की ज़रूरत है, वही हमारी धरोहर है। तो मैं चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने और अपनी पढ़ाई के साथ साथ देश का और समाज का विकास करें। Well said, sir. And my last question to you is,
how do you tend to establish a healthy relation and environment in your university? देखिए, मैं तो कुर्सी में बैठ के काम करने का आदी नहीं हूँ। मैं क्लासरूम में जाता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं फैकल्टी के साथ जाता हूँ, मैं रिसर्च के प्रोजेक्ट और प्रपोजल देखता हूँ। अभी हम लोग नैक पे लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि क्वालिटी इज़ माय प्रायोरिटी। तो हमें ये लगता है कि अगर हमारे बच्चों के लिए ही तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी है, हमारा कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीन कैंपस है, हम अपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करें। हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे आसपास के गांव को गोद लेकर हम वहाँ के बच्चों का विकास करना चाहते हैं, वहाँ की महिलाओं का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, अपने जो रिसर्च हो रही है उसका लाभ समाज को मिले इसके बारे में करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश तो ये है कि मैं कुर्सी पर बैठकर कोई एक शासनाध्यक्ष की तरह से काम नहीं करूं। मैं बच्चों के बीच में जाकर उन्हें पढ़ाने का भी काम करना चाहता हूं, उन्हें मोटिवेट करने का भी काम करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमको मनुष्य के रूप में जन्म दिया है। अगर हम एक अच्छी सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हम वैल्यूज़ को प्रमोट करें, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपके जीवन में बहुत प्रभावी होने वाली हैं। Thank you so much, sir. And I am sure that the thoughts you have shared on a platform will be deeply beneficial and aspiring for the students too also, sir. Thank you so much for giving us your valuable time, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much. At the last, I will request all the students visit our Gandhinagar RKDF University campus and see the glimpses of some of the things which I have mentioned in my talk. You will be happy to know that we have a very good environment of teaching, learning and research. Thank you very much. Thank you so much.